Hello guys, today we have the topic the refractive index, which is one of the most important topic in refraction chapter. So let us have the refractive index. Refractive index. This single topic is required very much in case of numerical problem, conceptual problem and hot questions, and this is very important to understand very clearly this refractive index. We will define it, refractive index, in two different forms. First of all, refractive index is nothing but the capacity. First definition, the capacity or the ability of an optical medium the capacity or the ability of an optical medium to bend the ray of light towards the normal. This is the theoretical definition, and this is most important definition. This is not the mathematical definition. The capacity or the ability of any optical medium to bend the ray of light either towards the normal is called the refractive index of that optical medium. To understand, I can say this capacity as the औकात हम कह सकते हैं इसे, किसी भी मीडियम की, ऑप्टिकल मीडियम की क्षमता किधर बेंड करने के लिए, नॉर्मल की तरफ बेंड करने के. सपोज हियर आई हैव अ मीडियम, सपोज दिस इज डेंसर मीडियम. इट इज नॉट नेसेसरी टू बी टेकन एज द ग्लास मीडियम एनी टाइम. इट इज एनी डेंसर मीडियम. ओके, एंड दिस इज द रेयर मीडियम. सपोज दिस इज द नॉर्मल and this is the ray of light which is incident at point O making angle I. Then this medium has the capacity to bend this ray of light towards its normal की तरफ bend करेगा, because this is the denser medium. Speed of this ray of light will get reduced here, so it will lose its speed and it will bend towards the normal. Now this is suppose towards the normal making angle R. That is called angle of refraction. We have discussed. Here, angle R is less than angle I. Suppose another medium is there, and I am taking here, suppose this is 40 degree, and this R equals, suppose here, 35 degree. In this medium 1. Suppose I have medium 2, and in this medium, again, it is 40 degree. And it is suppose very close to the normal, and this angle small r is suppose 30 degree. How much? 30 degree. What does it mean? Which capacity is more to bend the ray of light towards the normal? Obviously, this second medium has the more ability, capacity, जिसे औकात कहते हैं, किधर? अपने कदमों तले झुका देने का औकात. So, ये अपने कदमों तले कम झुका पा रहा है, ये कदमों तले क्या कर रहा है? ज्यादा झुका रहा है. याद करने के लिए इसे बोला जा सकता है, अपने कदमों तले झुका देने का जो औकात है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं. ठीक है, इट मीन्स दैट दिस सेकेंड मीडियम हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, राइट? बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया. इसका मतलब है टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा बेंड किया, ये टुवर्ड्स नॉर्मल कम बेंड किया. So this is the meaning, the capacity or the ability. So this medium has more capacity or ability to bend the ray of light towards the normal. That's why small r is 30 degree and is less than this 35 degree. Okay. Now the second definition, that is called mathematical definition of this refractive index for numerical problem, right? What is this? Suppose I have two medium. Here medium 2, this is medium 1. Suppose ray of light is coming from this medium 1 making angle I.
Suppose in this medium it is coming with velocity v1, and in this medium, suppose it is passing like that. It means that second medium is the denser medium with respect to the first medium. This is angle r. Suppose velocity is v2. Okay. It is not necessary that you have to take always from rarer to denser medium. You may take from denser to rarer medium. जिस मीडियम से आ रहा है उसमें स्पीड v1 है, जिस मीडियम में जा रहा है उसमें स्पीड v2 है. If it goes from this medium to this medium, you take just v1 here and v2 here. Okay. With respect to this one, the definition, the refractive index of the second medium will be defined with respect to the first medium. जिसमें लाइट ट्रांसमिट कर रहा है, जिसमें जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होता है. स्नेल्स लॉ में भी आपको बताया गया था पहले. सो वी शैल बी डिफाइनिंग हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. कैसे? सी हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं आर आई, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to WRT, with respect to the first medium is defined as the ratio of the speed of light in first medium to the second medium. Okay. Second medium definition पर ध्यान देंगे. The refractive index of second medium, this medium, with respect to the first medium, is defined as ratio of the speed of light in first medium, that is v1, to the division the speed of light in the second medium. That is, refractive index has the symbol mu. क्या कहते हैं इसे? MEU, mu. Greek letter it is, and it is written as mu. In your book, it is written as n. Okay, n. So I am writing in place of n mu. This is the best symbol of the refractive index, mu. ऐसे घुमाते हैं. That is mu, Greek letter. So mu of the second medium. See here carefully. Mu of second medium. Right here second. With respect to the first. लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूं. With respect to the first. अब इसे याद कैसे रहेगा कि 1 ऊपर होगा या 2 ऊपर होगा? जैसा पढ़ रहे उस तरह से लिखना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. जिसे रेस्पेक्ट दिया जा रहा है वो कहां रहेगा? ऊपर होगा. रेस्पेक्ट कहां होगा? ऊपर होगा. ये याद करने का एक तरीका हुआ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. इफ आई राइट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम, रेस्पेक्ट यहां जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम. एक तो ये हो गया. दूसरा लिखने का बहुत आसान तरीका. एक तो रेस्पेक्ट को समझिए कि रेस्पेक्ट ऊपर. दूसरा तरीका, अभी लाइट कहां से आ रहा है? फर्स्ट मीडियम से आ रहा है, सेकेंड मीडियम में जा रहा है. देखिए यहां फर्स्ट मीडियम से आ रहा है, सेकेंड में जा रहा है. सो फर्स्ट म्यू सेकेंड. लाइट सपोज सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है. सपोज सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है. देन वेरी इजी टू राइट. कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम. देखो सेकेंड से कहा जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है. सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है. सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है. तो जिससे आ रहा है वो ऊपर होगा, जिसमें जा रहा है वो नीचे होगा. वेरी इजी टू राइट हियर द सिंबल. इसको गड़बड़ नहीं करना है. जब आप बुक में देखोगे N12 और N21 लिखा हुआ मिलता है, एंड स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड. 1-2 मीन्स फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड और सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. रेस्पेक्ट मीन्स ऊपर. बहुत आसान हो जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रेस्पेक्ट ऊपर. और दूसरा तरीका क्या? 1 से आ रहा है, 2 में आ रहा है, 1 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा. ये 2 नीचे है, इसमें जा रहा है. सेकेंड से जाएगा, फर्स्ट में जाएगा. देख लो यार, सेकेंड से जाएगा, फर्स्ट में जाएगा. सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है. राइट. सो आई एम राइटिंग हियर द सिंबल
इसे एरो मार्क वगैरह नहीं लगाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज, कैसे डिफाइन हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और उसे क्या लिया गया है, v1 लिया गया, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके ओके, सी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज, अब इसे मैं मिटा दे रहा म्यू को, एबीयू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स नथिंग बट v1 बाय v2 इन सिंबॉलिक फॉर्म। v1 इसमें था, v2 इसमें, v1 v2 v1 बाय v2। सो दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दो मीडियम के रेस्पेक्ट में। एक पेयर हमारे पास होना चाहिए, एक रेयर हो एक डेंसर हो, सो दैट रिफ्रैक्शन में टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन हो, बेंडिंग हो, चेंज इन स्पीड हो, राइट। उस केस में जिसमें से आएगा वो ऊपर और जिसमें जाएगा वो नीचे। अब ये यहां क्लियर नहीं कर रहा हो यार कि v1 लेस है या v1 लेस है। आई एम टेकिंग द जनरल केस ऑफ टू मीडियम, राइट। अब देखेंगे कि इफ आई टेक द फर्स्ट मीडियम एज द एयर और वैक्यूम मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम को एयर या वैक्यूम ले लिया जाए, इन दैट केस इफ द फर्स्ट मीडियम, if the first medium is air और vacuum, इसको वैक्यूम ले लिया गया फर्स्ट मीडियम को, इन दैट केस दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पेशली नॉन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट शैल वी राइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, generally we say refractive index of one medium with respect to the other medium, but when the first medium is the air or vacuum, then you have to take absolute refractive index. Now in that case what will be the definition, same definition, refractive index of the second medium with respect to air, yani refractive index of second medium with respect to air, a for air suppose. Now, for the convenient, I am taking this second medium as the glass medium, right? इसको मैं glass medium ले रहा हूं, second medium को glass ले रहा हूं, और first medium को क्या ले लिया मैंने, air ले लिया। और जैसे air और vacuum लिया गया, ये v1 जो स्पीड है, ये v1 का सिंबल क्या हो जाएगा, c। जब एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है उसे c से डिनोट करते हैं, c, and I take this v2 as v। Okay, now see here, absolute refractive index of glass with respect to air, रेस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, एयर को। कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, ग्लास में जा रहा है, एयर ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज नथिंग बट c अपॉन v। सेम डेफिनेशन, नो प्रॉब्लम। v1 की जगह पर क्या हो गया, c हो गया, क्योंकि यहां एयर और वैक्यूम हो गया। v2 की जगह पर क्या हमने ले लिया, v ले लिया, क्योंकि v1 v2 तो जनरल केस में लेते ही है। v1 को हमने c से रिप्लेस कर दिया, v2 को v से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज c बाय v। एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी whenever we take a refractive index of any optical medium with respect to air or vacuum, then this term is known as absolute refractive index, right? और यहां हमें कभी भी with respect to air और vacuum नहीं लिखना पड़ता है। Take an example. Suppose I am taking first medium as air medium and second medium as water medium. It is not necessary to say every time that refractive index of water with respect to air, or glass with respect to air, or diamond with respect to air, or kerosene with respect to air. No, because when we talk about air or vacuum as the first medium, then we shall only write refractive index of water, refractive index of glass. Respect बोलने की जरूरत ही नहीं है, because understood it is that the first medium is, यानी जिस मीडियम से आ रहा है that medium is air और vacuum. बुक में जो भी डाटा दिया हुआ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसमें कहीं भी विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज दीज आर गिवन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर, देन केरोसिन, देन डायमंड, देन सपोज कार्बन डाइसल्फाइड,
वट एवर ऑप्टिकल मीडियम यू हैव, उसका जो दिया हुआ है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, राइट? नाउ गाइस, वी हैव डिफाइंड हियर two types of refractive index. One is general refractive index, second is absolute refractive index. Now think about the unit of refractive index. Can it have any unit? Refractive index of any medium second with respect to first is given by speed to speed. So what do you think? Should it have any unit, or we can say that SI unit? No, because it is the ratio of two same physical quantities. So it is a pure number. ये क्या है? It is a प्योर नंबर. रेशियो क्या आएगा? एक प्योर नंबर आएगा. ये भी स्पीड, ये भी स्पीड. सपोज इट इज मीटर पर सेकेंड, इट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. कैंसिल आउट. सो प्योर नंबर. सो इट हैज नो यूनिट. पॉइंट क्या आया? इट हैज नो यूनिट. क्यों? एज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज. ये याद रखना, क्वांटिटीज. ठीक है? सो इट इज जस्ट अ प्योर नंबर. ओके? नाउ गाइस, आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट डज इट मीन. सेंटेंस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. Okay? The statement is the refractive index of glass is 1.5. Question is, what do you mean by this statement? This is NCERT question also. कुछ भी दिया जा सकता है. वाटर का दिया जा सकता है, डायमंड का दिया जा सकता है, किसी चीज का भी दिया जा सकता है. इसका मीनिंग क्या है अभी हमने डिफाइन किया. इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium. Again, take care of this one. Refractive index of glass, it is written 1.5. So what type of refractive index it is? It is absolute refractive index. It is not given with respect to air or vacuum. So it is must that this very 1.5 refractive index is with respect to air or vacuum. So I am writing here glass and the refractive index of glass with respect to air equals 1.5. This is the statement. What is the formula here? This is nothing but C upon V. जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो फर्स्ट मीडियम कौन था? एयर और वैक्यूम. और नोटेशन क्या है? C. एंड व्हाट इज C वैल्यू? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. इसको ये बोलो और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलो. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. See here V. What is V? The speed of light in glass. सेकेंड मीडियम में ग्लास में जो स्पीड है वो मुझे मालूम नहीं है. बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन. See here, just equation 1.5 by 1 equals C upon V. Cross multiply करो. V equals, you can get C upon 1.5. What is C? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Or 3 lakh kilometer per second divided by 1.5. If you cancel it, you shall get 2. So this is nothing but 2 into 10 to the power 8 meter per second, or just 2 lakh kilometer per second. So see guys, what does it mean? It means that with respect to air or vacuum, कोई भी अगर सेकेंड मीडियम होगा जो डेंसर होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो भी सेकेंड होगा वो डेंसर होगा. उसको छोड़ के ग्लास एक डेंसर मीडियम है. डेंसर में क्या होता था? स्पीड स्लो होता था, इसीलिए बेंडिंग किधर होता था? टुवर्ड्स नॉर्मल होता था. सी न्यूमेरिकली हियर. जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी, उस लाइट की स्पीड ग्लास में जाते ही कितना रह गया? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गया. कितना से रिड्यूस कर गया? रिड्यूस्ड बाय 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का रिडक्शन हो गया स्पीड में. इसी प्रकार यदि एक डायमंड ले लिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, उसमें आप देखो यहां स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड भी डी लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा? C अपॉन 2.42. स्टिल लेसर देन दिस 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया. सपोज वाटर ले लिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई एम टेकिंग. ठीक है?
सो स्पीड इन वाटर कितना हो जाएगा लाइट का, c अपॉन 1.33, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट पूछा गया इसका मीनिंग बताओ, उसे समझ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 इट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास reduces by a factor of 1.5, by a factor of 1.5। डिवाइड कौन कर रहा है, 1.5 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 लाख को। 2.42 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 लाख को। 1.33 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को। इसका मतलब जो भी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे 3 लाख को डिवाइड कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग एक लाइन में क्या मीनिंग लिख सकते हैं इसका, इट मीन्स दैट, क्या समझा हमने, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास reduces by a factor of कितना, 1.5 with respect to that in air और वैक्यूम। इसका मतलब एयर और वैक्यूम में जो भी स्पीड होगा उससे कम होगा। कितना कम होगा ये कौन डिसाइड करेगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का 1.5 से डिवाइड हुआ, जो आया वो आंसर हुआ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, relation between speed of light, the frequency of the light wave and the wavelength जिसे लैम्डा से डिनोट किया जाता था। In class 9 we have studied in sound chapter speed equals frequency into wavelength, ठीक है। Now frequency is what, number of waves per second, wavelength is what, the successive distance between successive crest or trough, और in case of longitudinal wave two successive compressions और rarefaction के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसे वेवलेंथ बोला जाता था। अब यहां ध्यान देना है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, जो सोर्स होगा लाइट का, सपोज सन इज द सोर्स और एनी स्टार इज द सोर्स और टॉर्च इज द सोर्स, वट एवर सोर्स में बी देयर, जो सोर्स होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, वो जो इमिट कर रहा लाइट पर सेकेंड जो इमिट कर रहा वेव, वो फिक्स होगा, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। बट व्हेन दैट वेव ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम देन देयर इज चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ। अगर वो डेंसर मीडियम हो गया तो वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यानी इफ स्पीड डिक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस because frequency remains the same. A very important relation here. If this is the relation, then in terms of refractive index, you have very important कि suppose refractive index of glass with respect to air convenience के, बाकी किसी मीडियम को V1 V2 लिया जा सकता है। refractive index of glass with respect to air is what, C by V। ये हमारा डेफिनेशन था। Now this is the speed of light in air. In place of speed what can we write, frequency times wavelength, frequency of light in air into wavelength of light in air। जिस मीडियम से, एयर मीडियम से आ रहा था, जो वेवलेंथ रहा होगा, लंबा लंबा छलांग लगा रहा होगा सपोज। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, डेंसर मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन ग्लास into wavelength of light in glass। Now what फंडा we have, फंडा क्या है कि frequency remains same, so it is cut। फ्रीक्वेंसी यानी सोर्स जो है तो सोर्स तो वही है, और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड वही छोड़ रहा है, वही भेज रहा है, प्रोपेगेट वही करवा रहा है, लेकिन रास्ते में कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो सकता है, क्या, वेवलेंथ का। और वेवलेंथ से रिलेशन किसका है, स्पीड का। सो देयर मे बी चेंज इन द वेवलेंथ। नाउ वी आर नॉट नोइंग वेवलेंथ, सो व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी हैव, refractive index of glass with respect to air is wavelength in air by wavelength in glass, and this question is also in NCERT, in text question it is, right? कि one ray of light is obliquely coming of wavelength
something, frequency something. It enters into the glass medium whose refractive index is 1.5. Find the wavelength of that light in glass. यहाँ question mark. So this question will be solved with the help of this formula. So very important formula we have. Refractive index of glass with respect to air is nothing but wavelength of light in air divided by wavelength of light in glass. Okay. Now guys, finally हमें याद कर लेना चाहिए कुछ लिस्ट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के हैं, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, जो जो न्यूमेरिकल में, कंसेप्चुअल में जनरली यूज होगा, उसका लिस्ट है, उसे याद कर लेंगे आप. फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां मीडियम दे रहा हूं और यहां उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख रहा हूं. ठीक है. कॉमन मीडियम, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वाटर. वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. मीनिंग आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, यानी स्पीड ऑफ लाइट को 1.33 टाइम्स कम कर देगा. देन कम्स सपोज केरोसिन ऑयल. इस केरोसिन ऑयल का इससे ज्यादा डेंसर है 1.44, यानी और स्पीड को कम कर देगा. कितना से डिवाइड करेगा? 1.44 से डिवाइड करेगा स्पीड ऑफ लाइट को. देन कम्स सपोज ग्लास मीडियम. अब ये ग्लास मीडियम में डिफरेंट ग्लास हो सकता है ना. ये ग्लास भी अलग अलग हो सकता है, फ्लिंट ग्लास हो सकता है, क्राउन ग्लास हो सकता है. अलग अलग ग्लास की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है. आई एम राइटिंग हियर जनरल. सपोज क्राउन ग्लास इट इज, एंड दिस ग्लास मीडियम हैज 1.51 refractive index. Generally, while solving the numerical problem, it is given 1.5. Okay. Then suppose one flint glass is there. इससे ज्यादा डेंस है, फ्लिंट ग्लास है. इस फ्लिंट ग्लास का, इसे कौन सा ग्लास कहा जा रहा है? क्राउन ग्लास कहा जा रहा है. इसे कौन सा ग्लास? फ्लिंट ग्लास. 1.71 और ज्यादा डेंसर हो गया. एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड डायमंड. बाकी की जरूरत नहीं है. डायमंड का है 2.42, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम और सबसे कम एयर और वैक्यूम. देन कम्स वाटर, केरोसिन. देख लो डेंसिटी बढ़ते चली जा रही है. इसका मतलब अब अगर इधर से इधर आया जाए, यानी लाइट को पहले इसमें दिया जाए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और हर एक में लाइट को कितने एंगल पर फॉल कराया जाए? सपोज 30 डिग्री एंगल पर फॉल कराया जाए लाइट को, सभी मीडियम में बारी बारी से, तो आराम से बताया जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में सबसे कम होगा. बता सकते हो? इन विच मीडियम? 1 2 3 4 5 मीडियम हमने दिया. इस 5 मीडियम में अगर वो 30 डिग्री पर आता है लाइट, स्पीड उसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, बारी बारी से अगर एंटर करता है, तो सबसे कम स्पीड उसका, उस लाइट का कौन सा मीडियम में होगा? थिंक. ओके, दिस इज दिस मीडियम. इसका मतलब यहां इसकी स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.42. जैसे इसमें होगा कितना स्पीड हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.71. इसमें कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.51. इसमें कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.44. इसमें कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.33. सी द सिचुएशंस. इसका मतलब सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर ये है, सबसे छोटा ये होगा और सबसे बड़ा ये होगा. Now guys, finally we have come to an end. I have written here medium refractive index from water to diamond successively, increasing refractive index. Arrow mark पर ध्यान दीजिए. Arrow mark top to bottom. I have written speed of light decreases. याद करेंगे इसे. और bottom से top हमने लिखा है speed of light increases. ठीक है? It is very clear. Now this is the end of this lesson. In next lesson I will be taking the relative refractive index between multiple media. अभी 2 मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग 3-4 मीडियम की बात करेंगे और देखेंगे किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाएगा. बहुत आसान सा फॉर्मूला बनाएंगे. और दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो हमने शुरुआत में लिया था ग्लास स्लैब, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. Lateral displacement. What is the meaning of this lateral displacement? We shall be discussing and all phenomena related to this lateral displacement. Okay, till then, bye.